Praise the Lord and welcome once again this morning. Praise the Lord और एक बार फिर से आज की सुबह आप सबों का स्वागत है. Let's worship the Lord together. आइए हम मिलकर आज के दिन आराधना प्रभु की करें. Amen. Amen. This is the day the Lord has made. क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है. We will rejoice and be glad. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे. Maybe circumstances might not have been good for you in the past week. संभव है जो बीता सप्ताह में परिस्थितियां आपके लिए बहुत सुगम नहीं थी. Never mind. लेकिन हम उसकी चिंता ना करें. Even as we worship God, जैसे ही हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, something good is going to happen. कुछ आपके लिए अच्छा प्रभु करेगा. The joy of the Lord is our strength. ओ यहोवा की शादमानी मेरी कुव्वत है. That's what the devil wants to rob us of. और यही वो चीज है जिस आनंद से शैतान हमें लूटना चाहता है. Choose to rejoice in God. प्रभु में आनंदित होना चुन ले. Hallelujah. हालेलुया. We want everybody to be happy. हम चाहते कि आप सभी लोग खुश रहें. Amen. आमेन. The children can also join and sing with us. बच्चे लोग भी इस गीत में हमारे साथ शामिल होकर गा सकते हैं. Amen. आमेन. Everybody to be happy. We want everybody to be glad. We want everybody to be happy in the Lord, and we don't want anybody sad. We want everybody to be happy. We want everybody to be glad. We want everybody to be happy in the Lord, and we don't want anybody sad. I'm glad I belong to Jesus. I'm glad I belong to Jesus. I'm glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. 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 Hallelujah, praise the Lord. मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ. मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ. मैं खुश हूँ, मैं यहोवा का हूँ. Hallelujah, Uazad, amen, amen. 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 Hallelujah, Uazad. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया. मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया. मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया. मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया. मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया. मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह. मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Give him praise and glory this morning. प्रभु को स्तुति करें. आज सुबह प्रभु की महिमा प्रभु को दें. Clap your hands, all you people.
ओ बाइबल जैसे कहती, सारे लोगों ताली बजाकर उसकी स्तुति करो। Shout unto the Lord with the voice of triumph. परमेश्वर की रे ऊंची ललकार की आवाज के साथ पुकारो। What a mighty God we serve. कैसे सामर्थी परमेश्वर की आज हम सेवा करते हैं। Angels bow before him. जिसके सामने स्वर्गदूत दंडवत करते हैं। Heaven and earth adore him. स्वर्ग और पृथ्वी उसकी उपासना करती What a है। mighty God we serve. कैसा सामर्थी प्रभु की हम सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sing it to him. आइए उसे गाएं। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched hand. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. But nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. No, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Sing it. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Hallelujah. हालेलुया। It might be your sickness, वो चाहे वो आपकी बीमारी क्यों ना हो, and you wonder और आप उसको लेकर ये आश्चर्य करते हैं what is going to happen to me. कि मेरे साथ में इसे लेकर क्या होगा। Look unto your God. अपने परमेश्वर की ओर आंख उठाओ। What a mighty God he is. कैसा सामर्थी वो प्रभु And है। he says, और जब वो कहता है is there anything too hard for me? कि क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है, Nothing. कुछ भी नहीं, No, nothing कुछ भी is too नहीं, difficult. मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। Whether it be cancer, kidney, चाहे वो whatever it might be. कैंसर का, चाहे वो किडनी का, कोई भी रोग क्यों ना हो। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is able. परमेश्वर हमारा सामर्थी योग्य है। He's able, he's able. वो योग्य है। I know he's able. मुझको मालूम है कि वो योग्य है। I know my God is able to मैं carry जानता me through. हूँ मेरा परमेश्वर सब कुछ करने के योग्य है। Hallelujah. Thank you, Lord. Sing it. उसे गाएं। Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee.
Clap your hands, worship God together. ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्कूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्कूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मस्कूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजा खुशी हो या नई हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मस्कूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। These are all Urdu songs. ये सब उर्दू लफ्ज वाले गीत हैं। And when it says Noor means the glory of God. नूर का मतलब परमेश्वर की ज्योति। We are children of the light. हम ज्योति की संतान कहलाए गए हैं। Walk as children of the light. और बाइबल कहती इसलिए ज्योति की संतान के मानिंद चलो। Hallelujah. आमेन। And walk in the light. और ज्योति में चलो। आमेन। Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. You know, the Christian walk is in the light. आप जानते एक मसीही का जो चलना है वो ज्योति में ही उसे चलना है। We don't haphazardly run here and there. हम यहाँ वहाँ बेठिकाने दौड़े नहीं चले जाते हैं। Paul says, I so run that I might obtain. पौलुस कहता मैं ऐसे दौड़ता हूँ कि मैं जीतूं। We have to follow Jesus. हमें यीशु मसीह के ही पीछे अनुसरण करना है। Jesus, when he called his disciples, यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को चेलों को बुलाया, he would say like this, वो उनसे इस प्रकार से कहा करते थे, follow me. मेरे पीछे हो लो। And the glorious part of those passages is, और उस भाग का जो सबसे महिमामय भाग है वो ये है, they left all and followed him. कि वे चेले अपनी सारी चीजों को छोड़कर यीशु के पीछे चले गए। You can walk with him to the valley. हम यीशु मसीह के साथ यदि हैं
तो तराई में भी हम चल सकते हैं। Amen. आमेन। And He'll land us safely to the safe place. और वो हमें सुरक्षित स्थान में लेकर चला जाएगा। Amen. आमेन। As the old song says, एक पुराना गीत है, follow, follow, I will follow Jesus. पीछे चलते चलते मैं यीशु के पीछे चलूंगा। Anywhere, everywhere, कहीं पर भी, I'll follow on. जहां पर भी मैं उसके पीछे चलूंगा। Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet water flows. Everywhere He leads me, I will follow, follow on, walking in His footsteps till the ground be won. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere He leads me, I will follow on. Down in the valley with my Savior I will go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With His hand to lead me, I will never, never fear. Danger cannot frighten me if the Lord is near. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere He leads me, I will follow on. Hallelujah. हालेलुया। Amen. He's my everything, He's my all. वो प्रभु ही मेरा सब कुछ है, वही संपूर्ण है। Like honey in the rock, जिस प्रकार से चट्टान में का मधु है, Jesus tastes like the honey. यीशु मसीह मेरा प्रभु उस मधु से भी मीठा है। Hallelujah. आमेन। He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like the honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like the honey in the rock. Some folks may ask me, some folks may say, who is this Jesus you talk about every day? He is my Savior. He sets me free. Now listen while I tell you what He means to me. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me,
made everything new. He is my everything. Now how about you? Like a honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like the honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for He tastes like the honey in the rock. Hallelujah. Thank you, Jesus. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। वो तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझ में ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया।
परमेश्वर को हालेलुया राजा को हालेलुया परमेश्वर को हालेलुया राजा को राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमेशा साजा देगा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हमेशा साजा देगा आराधना आराधना Give you glory and praise. हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. ग्लोरी ग्लोरी Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु Jesus. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू Sing that song. Lord, I come. उस गीत को हम गाते, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, I need you, Lord.
प्रभु मुझको तेरी जरूरत है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I come, I confess how in need I find rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. I want to fetch my righteousness. Oh Lord, how I need you. The sin runs deep, your grace is more. Grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. I want to fetch my righteousness. Oh Lord, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. This is our prayer this morning. हमारी प्रार्थना आज सुबह प्रभु यही है, Abide with us. प्रभु तू हमारे साथ में वास कर, For without you, we cannot do anything. क्योंकि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। We say like Moses who said, हम मूसा के समान आज तुझसे प्रार्थना करते हैं, if your presence shall not go with me, take me not hence. प्रभु यदि तेरी उपस्थिति आगे हमारे संग ना जाए तो हमें भी आगे मत ले जा। Take us through to the end of time. समय के अंत तक प्रभु तू हमें लेकर चल, हम मांगते हैं। Hold our hands in your hand. हमारे हाथों को प्रभु तू अपने हाथों में लेकर चल। Lift us up when we fall. प्रभु तू हमें उठा जब कभी हम गिर जाते हैं। Wash us when we call. प्रभु हमें शुद्ध कर दे जब कभी हम तुझको आवाज देते स्वामी। Thank you for helping us through life's journey. प्रभु जीवन की इतनी तक की यात्रा में हमारा साथ तू दिया, हम तुझको धन्यवाद कहते हैं। Now our prayer shall be this. हमारी प्रार्थना प्रभु तुझसे यही होगी Keep us faithful till the end of time. कि हमें समय के आखिरी वक्त तक विश्वास योग्य बना कर रखना। Bless your precious people. अपने इन बहुमूल्य लोगों को तू आशीष दे, Lord, who are so eagerly waiting to hear the word. जो तेरे वचन से सुनने के लिए इतनी उत्सुकता के साथ में इंतजार कर। Holy Ghost, break the word of life. हे पवित्र आत्मा, जीवन की उस रोटी को उनके लिए तोड़ दे।
Feed us with bread of heaven. हमें स्वर्ग की रोटी में से खिला दे। Satisfy our longing soul. हमारी उस चाहत भरे हृदय को तू तृप्त कर दे। Bless us in Jesus' name. हम सबको आशीष दे, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. Thank the Lord once again for this wonderful day. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। God has brought us to the close of one more year. परमेश्वर ने एक और वर्ष के समाप्ति तक हमें लेकर आया है। Great is His faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता महान है। Amen. आमेन। Give Him all the praise and glory and honor. सारी स्तुति, महिमा और आदर परमेश्वर को दे। Everywhere, all around the world, हर एक जगह दुनिया भर में people are getting ready to celebrate the birth of Jesus Christ. लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। The message is still the same. संदेश आज भी वही है। Peace on earth, पृथ्वी पर शांति हो, goodwill towards all men. सारे मनुष्य जाति पर अनुग्रह हो। With one angel, एक स्वरदूत के साथ multitudes joined and sang. वहां पर बड़ी भीड़ स्वरदूतों की आकर गाने लगी। Glory to God in the highest. परमेश्वर जो आकाश में उसकी महिमा हो, And on earth peace, और पृथ्वी पर शांति हो, goodwill towards all men. मनुष्य जाति पर अनुग्रह हो। Hallelujah. हालेलुया। Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, our hearts are filled with thanksgiving to you हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। for all your goodness and mercy towards us. तेरी सारी भलाई और करुणा जो हमारे प्रति है। What shall we render unto the Lord for all the good things He has done for us? हम प्रभु को उसकी भलाई के बदले में क्या लौटाएं? We say like the psalmist who said, हम भजन के लेखक के समान बोलेंगे, bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and all that is within me bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Do not forget His benefits. और जो उसके उपकार को कभी ना भूलना। Yes, Lord. हाँ प्रभु, We remember all what You've done for us. तूने जो कुछ हमारे लिए किया उन सब को हम स्मरण करते हैं प्रभु। Bless us today. आज के दिन तू हर एक को आशीष देना। Holy Spirit, give us the words to speak. हे पवित्र आत्मा, बोलने का वचन तू हमें दे। Align our thoughts with Your thoughts. हमारा मन का विचार तेरे विचारों के साथ मेल हो जाए। Give us listening ears, O हमें God. सुनने वाले कान दे हे प्रभु। Bless our hearts हमारे हृदयों को सरगर्म as we कर, fellowship together. जैसे हम एक साथ संगति करते हैं। Bless Your precious people. अपने बहुमूल्य सुनने वाले लोगों को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful treasure we have. क्या ही खूबसूरत धन हमारे पास में है। The Word of God. परमेश्वर का वचन वो धन है। God speaks to us through His Word, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है, and we speak to Him through prayer. और हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं। Shall we turn our Bibles to Isaiah, the 60th chapter? क्यों ना हम बाइबल में देख लेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 60वां अध्याय। Beautiful promise. बहुत ही सुंदर वायदा यहाँ पर है। The whole chapter is wonderful. ये पूरा अध्याय ही खूबसूरत है। Message of hope आशा का संदेश है that God has not given up on His people. कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग नहीं दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So just a portion we read, हम इस 60 अध्याय के कुछ भाग को ही पढ़ रहे हैं। reading from verse 20. उसकी 20 आयत से पढ़ लेंगे। The prophet writing says, the sun shall no more go down, neither shall the moon withdraw itself. For the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा
और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। After giving all these promises, it looks like God attested with His own signature. ऐसा लगता है ये सारे वायदे जो इस अध्याय में लिखे, उसको बोलने के बाद परमेश्वर अपने हस्ताक्षर की मुहर उस पे लगा देता है। In the 19th verse it says, 19 आयत में वो कहता है, The sun shall no more be thy light by day, neither for brightness shall the moon give light unto thee. But the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। Amen. आमेन। God has not given up on His people. परमेश्वर ने अपने लोगों को त्याग नहीं दिया है। It seems sometimes that circumstance that we go through, that God is not interested in us. कभी-कभी ऐसा होता है, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते होते हैं, उसको देखकर ऐसे सोचते कि परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि नहीं ले रहा है। Let's not forget His promise. परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वायदों को ना भूलें। He says, when you go through the fire, उसने कहा है, जब तू आग में से होकर गुजरेगा, I will be with thee. तेरे साथ मैं रहूंगा। And when you go through the waters, they shall not overflow you. और जब तू जल में से होकर गुजरेगा, वो जल तेरे ऊपर से नहीं बहेगी। And I will hold your right hand and say to you, और मैं तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तुझसे कहूंगा, fear not, मत डर, I am with you. मैं तेरे संग हूँ। Listen friends, सुनिए दोस्तों, we will have to go through situations. हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। We may go through fire, संभव है हमें आग जैसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, but it's not always there. परंतु वो आग हमेशा के लिए वहां नहीं है। We're just passing through. हम तो उससे गुजरने वाले हैं। That's the place to hold on to God's word. और वही स्थान है परमेश्वर के वचन को थामे रहने का। That's the time to hold on to His promises. वही समय होता है परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहने का। Because we just going to pass through it. क्योंकि हम उस आग में से होकर गुजर जाने वाले हैं। And we're going to come out safe. और हम सुरक्षित उस पार निकल जाएंगे। For the Lord is with us. क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। Psalmist David said, भजन का लेखक दाऊद बोलता है, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, I shall fear no evil. तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा। For you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ Your है। rod and your staff, they comfort me. तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। God is with us. हमारे साथ परमेश्वर है। We will be singing these songs. और हम इन गीतों को उस दिन में गाएंगे। Emmanuel. इम्मानुएल। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He chose to dwell with us. उसने हमारे साथ रहने को उसने चुन लिया। He placed His tabernacle in the midst of Israelites. उसने इस्राएली लोगों के उस रहने के स्थान के बीच में अपना तंबू गड़ाने को चुन लिया। Now He comes to indwell us. और अब वह आज हमारे अंदर वास करने को आता है। What a beautiful, wonderful God we serve. क्या ही शानदार परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। In verse 20 it says, और 20 आयत में कहता है, The sun shall no more go down, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, neither shall thy moon withdraw itself. और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। For the Lord shall be thine everlasting light.
क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति ठहरे होगा, and the days of your mourning shall be ended. और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You see, we go through times of sorrow and pain. देखिए, हम दुख के समय और दर्द के समयों से गुजरते हैं। And the writer of the Ecclesiastes says, सभोपदेशक को लिखने वाला लेखक बोलता है, to everything there is a season. हर एक चीज के लिए वहां एक समय होता है, And a time for every purpose. हर एक उद्देश्य के पीछे एक समय होता है। There is time for everything. हर एक काम के लिए वहां समय है। And the fourth verse says, और चौथी आयत में वहां लिखा है, in third chapter, तीसरे अध्याय की चौथी a आयत, time to weep, रोने का समय a time to mourn, और विलाप करने का समय and a time to dance. और नाचने का समय। Hallelujah. Hallelujah. That's what the word of God is saying to us. परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा ही बोल रहा The है। Old Testament we read, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, many times we read there, बहुत सी बार हम वहां पर पढ़ते हैं, when the time of their mourning was over, जब उनके विलाप करने का वो समय, वो काल बीत गया, meaning there is a time for everything. यानी कि हर एक कार्य के लिए वहां एक समय है, There are seasons of things. वहां पर हर एक काम के लिए एक मौसम है। The Bible says बाइबल कहती है, Moses chose to suffer with the people of God. मूसा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को उसने चुन लिया, Then to enjoy the pleasures of sin for a season. इसके बजाय कि वो पाप के मौज में कुछ दिन जिंदगी काटे। And Peter writing in his epistle says, पत्रस अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है, First Peter, first chapter, 6th verse. पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, He says, wherein he greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness to manifold testings. वो कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। Paul is writing to Christians, और believers. पत्रस से विश्वासियों को ये पत्र लिख रहा था। They are going through time of tribulation. और वो विश्वासी Persecution. लोग बड़े सताव के और बड़े दुख के समय से गुजर रहे थे। So he says, I know that your faith, you hold on to your faith. वो कहता है उन लोगों को लिखकर, विश्वास को थामे रहो। You believe in the one whom you have never seen. तुमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जिसे तुमने देखा नहीं है। And you rejoice with exceeding great joy. और तुम बड़े आनंद के साथ आनंदित होते, मगन होते हो। But now for a season, परंतु अभी कुछ समय के लिए you are going through manifold testings. तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। So he says the trial of your faith is being more precious than gold which perisheth. और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे विश्वास का जो परखा जाना है, वो नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। See, after test is over, देखिए, कोई भी परीक्षा पूरा होने के बाद then there is promotion. वहां पर उस व्यक्ति को तरक्की मिलती है। Victory only comes after you have fought a battle. विजय तभी मिलता है जब आप युद्ध को लड़कर निकल चुके हों। Because you cannot call anything victory क्योंकि आप किसी without a ऐसी battle. चीज को विजय नहीं बोल सकते जहां आपने लड़ाई ना लड़ी हो। When you look back and see your enemy fall, जब आप पीछे Hallelujah. मुड़कर अपने दुश्मन को पराजित देखते हैं and you come through all the situations, और ये देखते हैं कि मैं उन सारी परिस्थितियों से निकल आया, and you begin to rejoice और आप सोचकर आनंदित होने लगते हैं that how great a victory God has given कि me. परमेश्वर ने मुझको कैसी बड़ी विजय दिया So है। for a time, a season, you're going through tribulation वो कहता and है persecution, कि कुछ दिनों के लिए तुम तरह तरह की परीक्षाओं के से गुजर रहे which has हो, caused you to be in heaviness. और जो तुम्हारे ऊपर एक बड़ा दुख और भारीपन ले आया है। But listen, he says this is just for a season. लेकिन पत्रस उनसे कहता है, लेकिन सुनो, ये कुछ दिनों के लिए है। For you and me also. आपके लिए और मेरे लिए भी। When the test of time comes, जब समय की परीक्षा आती है, your test of your faith comes, आपका विश्वास की परीक्षा का वक्त आता है, hang in there. उस समय थामे रहो, Hang in there. वहां पर जमे रहो, Don't give up. उस समय हार मत मानना, For the victory is very coming soon. क्योंकि विजय जल्द आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. Hold the fort. वो गढ़ को थामे रहो। Amen. The king Amen. is coming. क्योंकि राजा जल्द लौटने वाला है। Jesus signals still. यीशु मसीह इशारा कर रहा है, स्थिर रहो, Wave the answer back to heaven. और तुम भी वापस जवाब में उसको उत्तर दो। By thy grace we will. हे प्रभु, तेरे अनुग्रह से हम थामे रहेंगे। Hold the fort. उस गढ़ को बचा कर रखो।
The king is coming. राजा जल्द आ रहा The है, help is coming. मदद पहुंच रही Victory है, is coming. विजय जल्द आएगा, Deliverance is coming. छुटकारे का समय नजदीक Healing है, is coming. चंगाई नजदीक है, Days of your mourning shall be over. तेरे विलाप पर रोने का दिन अब पूरा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is saying, परमेश्वर बोल रहा है, the days of your mourning तेरे विलाप के दिन will be over. वो पूरा हो जाएगा। Amen. आमेन। Just for a season. कुछ दिनों के लिए ये दुख है। When Moses died, they mourned for him for 30 days. और मूसा की जब मृत्यु हुई तो वो 30 दिनों तक उसके लिए विलाप करते रहे, But they got up again. परंतु वे फिर से उसके बाद उठ गए, The race goes on. क्योंकि दौड़ आगे जारी रहती है। Don't look back पीछे मुड़कर ना देखें, to those failures. उन असफलताओं की ओर पीछे मत मुड़िए, Don't look back. पीछे मुड़कर उसे मत देखिए। Don't look at those things that had happened which brought you down. वो परिस्थितियों की ओर मुड़कर जिस परिस्थितियों ने आपको नीचे गिराया था उसे मत देखिए, Looking unto Jesus. परंतु आगे यीशु को देखते हुए, He is the author. क्योंकि वही तो करता है, He is the finisher of your faith. वही तो तेरे विश्वास का सिद्ध करने वाला है। Keep on. इसलिए दौड़ते रहे, Push him. आगे भागता रहे, Hallelujah. Press on. और तू आगे बढ़ता रहे। Paul says, पौलुस I बोलता है, press towards the mark. मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Days of your mourning will be over. तेरे विलाप के दिन पूरे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, in this world you will have tribulation. यीशु मसीह ने भी कहा, इस जगत में तुम्हें सताव होता है, But be of good cheer. परंतु ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने जगत को जीत लिया है। Amen. आमेन। Amen. He knows our situations. परमेश्वर हमारी परिस्थिति जानता है। There will be trials and temptations. वहां पर परीक्षाएं और हमारे लिए दुख का समय होगा, It's not forever. और ये हमेशा के लिए नहीं होगा। That sickness is not forever. वो बीमारी जो आप देख रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। The pain is not forever. वो दर्द जो आप देखते हैं हमेशा के लिए नहीं है। Tomorrow, क्योंकि आने वाले कल God will do great things for you. परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम को करेगा। Sanctify yourself. अपने आप को पवित्र कर लो, Tomorrow, क्योंकि आने वाले कल God will do great things. परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम करेगा। Believe it. विश्वास कर ले, Receive it. और विश्वास से उसे ग्रहण And कर confess ले, it. और मुंह से उसे अंगीकार करने लग जा। Amen. आमेन। Something happens when we confess. वो कुछ होता है जब मैं और आप कुछ अंगीकार करते हैं। Something happens within your soul. आपके प्राण के अंदर कुछ होता है। Like the psalmist will say, जैसे भजन का लेखक के समान हम बोलते हैं, why are you cast down, O my soul? हे मेरे मन तू क्यों उदास है? Why are you disquieted within me? तू क्यों मेरे अंदर उदास बैठा है? Hope in God. परमेश्वर पर आशा रख। My expectation is from Him. मेरी अपेक्षाएं परमेश्वर की I ओर से lift है। my eyes to the hills. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My help comes from the Lord. मेरी मदद मुझे वहीं से मिलती है। It's coming. वो आ रही है। Believe it. विश्वास कर लो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Days of your mourning तेरे विलाप के वो जो दिन हैं will be over. वो समाप्त हो जाएंगे। Psalm 30th Psalm, भजन संहिता और उसके 30 अध्याय में 5th verse says, और 30 के 5 आयत में लिखा है, for his anger endureth but for a moment. In his favor is life. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Joy will come आनंद पहुंचेगा in the morning. सुबह होते ही। Hallelujah. हालेलुया। The night is not always forever. रात्रि का वो वक्त हमेशा की रात्रि नहीं होता। Dawn comes भोर फटता है when the sun rises. जैसे ही सूर्य उदय होता है। You might be living in that dark situation. हो सकता है आज आप एक अंधकार में समय में रह रहे हो। You lost your hope. It seemed dark all around you. संभव है आपने आशा छोड़ दी, क्योंकि आपके चारों ओर की परिस्थिति बहुत ही गमगीन है। You can't see far because it's all gone. और Vision is आपको blurred. आने वाले दिनों में बहुत अधिक भविष्य नहीं दिखता, सब धुंधला है, It's all dark. सब कुछ अंधकारमय है। Listen to what God's word says. सुनिए परमेश्वर का वचन क्या बोल His रहा है। anger endureth but for a moment. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। In his favor is life.
उसके अनुग्रह में वहां पर जीवन है प्रियो। Weeping may endure for the night. और संभव है रात को रोना पड़े, For the night. रात को रोना पड़े, Joy will come in the morning. परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। You'll find pain is gone. आप पाते हैं वो दर्द अब चला गया। You find that sickness is no more holding your body. आप पाते हैं कि वो बीमारी अब आपके शरीर को जकड़े हुए नहीं है, It's no more living in poverty. और अब वो गरीबी की दशा में नहीं है। Doors are opening up for you. द्वार आपके लिए खुल In रहे His हैं। favor, उसके अनुग्रह में there is life. वहां पर जीवन होता है। There is life for you. आपके लिए वहां जीवन है। Amen. Amen. God's favor परमेश्वर का जो अनुग्रह है is through Jesus Christ our Lord. वो यीशु मसीह हमारे प्रभु के माध्यम से हमें मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। People have gone through these situations. लोग ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं। They have mourned for different reasons. उन्होंने अलग अलग कारणों से विलाप किया, रोया है। Some have mourned for their loved ones who have passed away. कुछ लोग तो अपने प्रिय लोगों के लिए जो गुजर गए उसके लिए विलाप किया है। Some mourn for those of their relations whom they have lost कुछ somewhere in the तो world. अपने रिश्तेदारों के लिए जो दुनिया में कहीं पर भी थे उसे याद करके उन्होंने विलाप किया है। Jacob was mourning for Joseph और याकूब विलाप कर रहा था यूसुफ के लिए, because he was not there. क्योंकि वो वहां नहीं था। He never knew where he is. और उसको मालूम नहीं था कि उसका बेटा कहां गया। But if you read the whole story, लेकिन यदि आप उस पूरी घटना को पढ़ें, his sorrow was turned into joy. उसका वो दुख जो था वो विलाप आनंद में तब्दील हो गया। Out of that misery, out of that pain, उस दुर्दशा के अंदर से, उस दर्द के भीतर से something beautiful comes out. कुछ खूबसूरत वहां निकल कर आता है। He was mourning every day for Joseph. वो हर दिन विलाप कर रहा, रो रहा था यूसुफ को याद They are करके। trying to console him. और जो आसपास के लोग थे उसको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे। He says, I will die in this sorrow. और वो तो कहता था कि मैं इसी दुख के साथ अपनी कब्र में चला जाऊंगा। Joseph, my son, is dead. मेरा बेटा यूसुफ आज नहीं रहा। One day one news came. लेकिन एक दिन एक समाचार आया Joseph is alive. कि तेरा बेटा यूसुफ मरा नहीं, जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। Life came into Jacob. वो उस बूढ़े याकूब के अंदर जीवन आ गया। And he sat down. और वो उठकर बैठ गया। Oh, my friends, ओ मेरे प्रिय this is दोस्तों, what God is going to do for you. परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करने वाला है। News is going to come. आपके लिए एक समाचार आएगा Salvation has come to your people. कि उद्धार तेरे लोगों के लिए आ गया है। The drunkard has repented and changed. वो कोई जो शराबी था वो पश्चाताप करके बदल गया The है। wayward child has come back. जो बिगड़ा हुआ बेटा था वो वापस रास्ते में आ गया The है। one whom you lost trace or track of. और जिसका आपने सारी आशा खो दी थी, जो गुम गया था, There is information that he's there. उसके बारे में कोई सूचना मिलती है कि वो कहीं पर है। Days of mourning shall be over. तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jacob sat down. और याकूब उठकर वो बैठ गया। He began to give thanks to God. और वो परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देने लगा। God let him go through this. परमेश्वर ने इतने अंतराल उसको उस दुख में रहने दिया, Something beautiful was going to come out. क्योंकि कुछ खूबसूरत निकल कर उसमें से आने वाला था। Amen. आमेन। That's what God wants to do for us. परमेश्वर हमारे लिए यही करना चाहता है। Others have mourned दूसरों ने भी विलाप किया है, for some who have gone astray. कुछ ऐसों के लिए जो भटक कर चले गए, Those who have lost their faith in God. जिन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर पर कभी था लेकिन खो दिए। It hits the heart of a man of God. और परमेश्वर के दास का दिल उसके कारण खेदित हो जाता है। Scripture says, और वचन में लिखा है, when Saul committed transgression against God, जब साउल परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया, and God said to Samuel, I have rejected him as a king. और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल से कहा कि मैंने शाऊल को राजा बनाकर मैंने उसको अब हटा दिया है। In 1 Samuel 15:35 it says, 1 शमूएल 15 और उसके 35 में लिखा है, and Samuel came no more to see Saul until the day of his death. वहां पर लिखा है,
फिर शमूएल शाऊल को देखने के लिए कभी नहीं आया उसके मृत्यु के दिन तक। Nevertheless, Samuel mourned for Saul, and the Lord repented that he had made Saul king of Israel. क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। 16th chapter, first verse. 16 के 1 में लिखा है, And the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? The other side of the story you don't know. कहानी का दूसरा भाग शमूएल तू जानता नहीं। What hits the heart of the man of God? परमेश्वर के दास के दिल में जो बात चोट लगती है, When men and women go away from God, जब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले दास और दासियां विश्वास से बहक जाएं, they lose the first love. वे उस प्रथम प्रेम को खो दें। God is no more in their calculations. अब परमेश्वर उनके हिसाब किताब में जब ना हो, Don't think a man of God rejoices. ऐसा ना सोचे कि कोई भी परमेश्वर का दास उस समाचार को लेकर आनंदित होता है। Only in his prayer he mourns before God. वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उनके लिए विलाप करता और रोता है। Samuel wept and mourned. It's a deep sorrow that is called mourning. लिखा है शमूएल नबी शाऊल के लिए विलाप करता रहा, अर्थात भयंकर दर्द के साथ खेदित हुआ। That's why Bible says, इसलिए बाइबल बोलती है, do your best to be a blessing in the house of God. परमेश्वर के घर में बेहतरीन करने का यत्न कर, So that the ones who serve him will serve him with joy. क्योंकि जो उसकी सेवा करे ताकि वे आनंद के साथ सेवा करें। There are others और दूसरे भी हैं who mourn जिन्होंने ऐसे समय में विलाप किया for the work of God. परमेश्वर के कार्य को लेकर। When they see the standards going down, जब उन्होंने उस आत्मिक स्तर को नीचे गिरते देखा, when they see the world coming in, जब उन्होंने संसार की बातों को कलीसिया में आते देखा, when they see there is compromise, जब उन्होंने कलीसिया के अंदर समझौते को देखा, when they see the temple of God neglected, जब उन्होंने परमेश्वर के घर को उपेक्षित देखा, when they see the people of God departing from the house of जब God, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को उसके घर को त्याग कर जाते देखा, the spiritual mourning in the heart. उनके हृदय जो आत्मिक तौर से विलाप करने लगा। They are not mourning for themselves. वे अपने खुद के लिए विलाप नहीं कर रहे थे, They are mourning for the work of God. परंतु रो रहे थे परमेश्वर का काम जो प्रभावित हुआ। In Ezra the 10th chapter the 6th verse says, एजरा 10 और उसके 6 में लिखा हुआ है, and Ezra rose up before the house of God and went into the chambers of Jonathan the son of Eliab. And when he came thither, he did not eat no bread nor drink water, for he mourned because of the transgressions of them that had been carried away. 10 के 6 में लिखा है, तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। He's mourning for God's people. परमेश्वर के लोगों को लेकर शोक कर रहा। A true shepherd एक सच्चा चरवाहा cannot rest विश्राम नहीं कर सकता when his sheep is gone astray. जब उसका भेड़, कोई भी भेड़ खो जाए। Mourning. वहां पर विलाप, शोक है। Ezra is mourning. एजरा शोक कर रहा है। They bring bread, he refuses to eat. वो उसके खाने के लिए रोटी लेकर आए, उसने इनकार कर दिया। Refuses to drink. पानी भी Water. पीने से इनकार कर दिया। He is mourning वो बहुत शोकित है for the people of God. परमेश्वर के उन लोगों को के कारण। And again you read in Nehemiah 1, first chapter, और फिर से आप नहम्या और उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं, 4th verse.
और 1:4 में, It came to pass when I heard these words that I sat down, wept, and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। He got some message. उसे नहम्याह को कुछ संदेश मिला। He had inquired about God's people. उसने खबर ली थी परमेश्वर के लोगों के बारे में क्या समाचार है। Don't say I don't know. ये मत कहें मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। If you don't know, inquire. यदि आप जानते नहीं हैं तो पूछताछ करके पता करें। How are they faring? वो कैसे रह रहे हैं? How's the house of God, the city of God? कैसे परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के नगर की हालत कैसी है? The walls of the city have fallen. नगर की शहरपनाह टूटी और गिरी हुई थी। The remnant which are there is in deep sorrow. और जो बचे हुए लोग वहां थे वो अत्यंत दुख में थे। The enemy all around them is always over them. और दुश्मन जो उनके चारों ओर रहते थे वे हर समय उनके ऊपर में हावी होते थे। Nehemiah, when he heard this, नहम्याह को जब ये सारी बातों का समाचार मिला, he wept. वो सुनकर रोने लगा। Bible says, बाइबल में लिखा है, blessed are they who mourn, धन्य हैं वे जो विलाप करते हैं for God, परमेश्वर के लिए, for God's purposes, for God's work. परमेश्वर के उद्देश्यों को लेकर, परमेश्वर के कामों को लेकर जो रोते हैं They shall be comforted. वे शांति पाएंगे। And the comfort came और वो शांति आई with the king's order. जब राजा ने आदेश पारित किया। King's favor was upon Nehemiah. राजा का अनुग्रह नहम्याह के ऊपर हो गया। His sorrow, और उसका जो दुख था, days of his mourning उसके विलाप के जो दिन थे were ended. अब वो समाप्त हो गया। And the wall was finished. और वो शहरपनाह फिर खड़ी हो गई। Hallelujah. 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 And the wall was finished. वो दीवार खड़ी हो गई बनकर। In spite of all opposition, तमाम विरोधों के बाद, in spite of all the attacks of the enemy, और सारे दुश्मन के हमलों के बाद, in spite of all the accusations, सारे आरोपों के बाद में the wall was finished. वो दीवार पूरा हो गया। If you mourn, God will comfort you. और परमेश्वर आपको शांति देगा आपके विलाप के बाद में। Jesus says these words. यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य हैं वे जो रोते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Mourning for God, परमेश्वर के लिए जो विलाप करते हैं, hungering for God, परमेश्वर के लिए भूखे होते हैं, praying and seeking God for a revival, एक बेदारी के लिए, आत्मिक जागृति के लिए जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, fasting and praying, और उपवास करते और प्रार्थना करते, wrestling with God, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना में संघर्ष करते, do anything और but send a revival. प्रभु चाहे जो भी हो जाए किंतु बेदारी को भेज, They shall be comforted. ऐसे लोग शांति को पाएंगे। Amen. आमेन। In Mark's Gospel 16th chapter, मरकुस का सुसमाचार और उसका 16 अध्याय में 10th verse says, 16 के 10 में लिखा है, this is after the resurrection of Jesus. ये घटना यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद की घटना है। And she went and told them that had been with him as they mourned and wept. उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। Hallelujah. हालेलुया। Here are the disciples of Jesus. यहाँ पर यीशु मसीह के कुछ चेले थे। We just don't get the whole story. हम पूरी कहानी को नहीं देख पाते, But it is written here, परंतु यहाँ लिखा है
After the resurrection of Jesus, he appeared to Mary. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो मरियम पर प्रकट हुआ He appeared to the women. और वो स्त्रियों पर प्रकट हुआ He says, go tell my disciples. और कहता है जाकर मेरे चेलों से कहो। They come back to this room. और जब वो इस कमरे में लौट के वे आए, They're weeping. वे लोग रो रहे थे। First day, second day, third day. दूसरे दिन, तीसरे दिन They're mourning. वे लोग रो रहे, विलाप कर रहे, Deep sorrow. अत्यधिक शोक में डूबे। The miserable death. It seemed like he was defeated man. और जिस प्रकार उसकी मौत हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक पराजित मनुष्य के समान यीशु मर गया। The one whom we loved. और जिस यीशु से हम इतना प्रेम करते थे, He's no more. वो आज नहीं है। They crucified, they buried him. लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, मरने के बाद उसे गाड़ दिया। They sealed him in the tomb. यहाँ तक कि एक पहाड़ नुमा गुफा के अंदर उसे मुहर लगाकर बंद It's कर दिया। over. अब सब कुछ बीत गया। That's what the world thinks. दुनिया वैसे ही सोचती The है। world will think the same thing with you. दुनिया आपके बारे में भी वैसे ही सोचती है Oh, we have sealed him. कि हमने इसके सारे कामों के ऊपर में मुहर लगा दी। It's over for his life. अब इसके जीवन के लिए कुछ नहीं बचा, सब पूरा हो गया। But wait a minute. परंतु जरा रुक जाओ। Word of God will come to pass. परमेश्वर का कहा हुआ वचन जरूर पूरा होगा। I will rise again the third day. उसने कहा तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। And it happened. और वैसे ही घटना होने लगी। The dead body began to breathe. वो शरीर जो मृत था वो सांस लेने लगा। The stone was rolled away. पत्थर स्वर्गदूत ने हटा दिया। And Jesus walked out of the grave. यीशु मसीह उस पहाड़ नुमा गुफा के अंदर से वो उस गुफा से बाहर निकल आया। Triumphant over death and hell and sin and Satan. और मृत्यु और नरक और पाप और शैतान के ऊपर जयवंत होकर निकला। Hallelujah. Hallelujah. Their sorrow was turned into joy. उन चेलों का दुख जो था आनंद में बदल गया। They began to run. वे लोग सुनते ही भागने They लगे। came to the grave. वे दौड़ते दौड़ते उस कब्र के पास पहुंचे। One went inside, the other watched from एक तो afar. अंदर प्रवेश कर गया उस गुफा के, दूसरा बाहर खड़ा रहा। The angels proclaimed and said, स्वर्गदूतों ने घोषणा करके कहा, don't seek the living among the dead. वो जो जी उठा है उसको मुर्दों के बीच तुम मत ढूंढो। He's not here. वो यहाँ नहीं है। He's alive. वो तो जी उठा है। Hallelujah. Hallelujah. For you as a Christian and a believer, आपके लिए जो एक विश्वासी और मसीह है, no stone is too great for God to roll away. परमेश्वर के लिए कोई भी पत्थर इतना भारी नहीं जिसे वो लुढ़का ना No सके। circumstances is too hard for him to solve. कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं है कि जिसका हल वो ना निकाल सके। For God says, I've seen your tears. क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे आंख के आंसू को मैंने देखा है। I've heard your prayer. तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली। Behold, I have come down to deliver you. और अब देख मैं नीचे उतर आया हूँ तुझे छुड़ाने के लिए। Hallelujah. 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 There was joy in the camp. वो उस छावनी में आनंद फैल गया। The message spread all over. संदेश हर जगह फैल गया Jesus is alive. कि यीशु मसीह जी उठा है। Soldiers are giving the testimony. और सैनिक लोग गवाही दे रहे हैं An angel came. कि एक स्वर्गदूत आया। We could not resist him, so powerful और he वो इतना was. ताकतवर था हम उसका सामना नहीं कर सकते The थे। light of his presence, we fell on the और ground. उसकी उस तेज ज्योति के सामने हम गिर पड़े। He walked out. और वो यीशु उस कब्र से बाहर निकल के चला गया। The days of your mourning shall be over. तेरे रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, यीशु ने कहा fear not, डर मत, it is me. मैं हूँ, Handle me and see. वो मुझे छू कर देखो। For the spirit doesn't have flesh and bones. क्योंकि आत्मा में कोई मांस और लहू हड्डी नहीं होती। Psalm 30 verse 11 says, भजन 30 और उसके 11 में लिखा है, for you have turned my mourning into dancing. तूने मेरे विलाप को नाचने में बदल दिया You है। have put off my sackcloth and girded me with gladness. ओ तूने मेरे ऊपर आनंद के चादर को ओढ़ दिया है। Hallelujah. Hallelujah. You have turned my mourning तूने मेरे विलाप को बदल दिया है, into dancing. नाचने में बदल दिया है। Thou hast put off my sackcloth, और तूने मुझे मेरे उस टाट को उतार कर girded me with gladness. आनंद के वस्त्र को मुझ पर डाल दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's what God is about to do. परमेश्वर ऐसा ही कुछ करने पर The है। days of your mourning shall be over. तेरे जो विलाप के वो दिन थे अब वो समाप्त हो जाएंगे। That's a promise of God. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से वायदा है। Amen. आमेन। I read in Isaiah 51:11. और यशाया 51 और उसके 11 में हम पढ़ते हैं, Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, with everlasting joy shall be upon their head.
They shall obtain gladness and joy, sorrow and mourning shall flee away. यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर आनंद अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। Oh, hallelujah. Hallelujah. What a promise. क्या वायदा है। The redeemed यहोवा के छुड़ाए of लोग, the Lord will return. वो छुड़ाए हुए लोग लौट के They are not आएंगे। coming with heads hanging down. वे झुके सर को लेकर नहीं आ रहे They are हैं। coming with singing वे तो गाते हुए लौट रहे into हैं। Zion. सियोन में आ रहे। Everlasting joy shall be upon their और head. अनंत आनंद उनके सिरों पर गूंजता रहेगा। Just imagine. कल्पना करिए, This joy is everlasting. ये आनंद जो लेकर आ रहे हैं वो अनंत काल का है। It shall be upon their head. वो उनके सरों के ऊपर रहेगा। They shall obtain gladness and joy. और उनको हर्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। They will obtain वे पाएंगे gladness and joy. वो आनंद पाएंगे और हर्ष को पाएंगे। Sorrow and mourning shall flee away. शोक चला जाएगा और रोना चला जाएगा। Glory, glory, hallelujah. हालेलुया। That's the promise. ये वायदा है उसका। And what God said, He will do it. और जो परमेश्वर ने बोला है वो वैसा ही करेगा। Hang in there. इसलिए तू थामे रहे। Something good is going to happen. तेरे लिए कुछ वही भला होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Isaiah 61, यशायाह उसका 61 अध्याय में 3rd verse says, और उसकी 3री आयत कहती है, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, plantings of the Lord, that He might be glorified. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे Glory. वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Hallelujah. हालेलुया। To them that mourn, वे जो लोग विलाप करते हैं, to give them beauty for ashes. राख के बदले उनको मैं सुंदरता दूंगा। Ashes means the end. राख का अर्थ होता है अंत। Ashes means hopelessness, nothing more. और It's all gone, finished. राख का अर्थ होता है आशाहीनता, सब कुछ समाप्त हो गया। Out of ashes उस राख के अंदर से shall rise क्या निकल कर आएगा? joy and gladness, आनंद और खुशी आएगी। beauty सुंदरता out of ashes. राख के अंदर से। Hallelujah. हालेलुया। You say, आप बोलते हैं, it's all over for me. आप कहते हैं कि मेरे लिए तो अब कुछ नहीं बचा। Just like this, ऐसे ही ashes to ashes, और राख पर राख कहते हैं nothing more. और कहते हैं अब मेरे लिए कुछ नहीं It's बचा, finished for me. मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। Don't say that. ऐसा मत कहिए, God is saying, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है from those ashes उन राख के अंदर से shall arise क्या निकल कर आएगा? beauty, सुंदरता निकल Hallelujah. आएगी। आमेन। oil of joy for mourning, हर्ष का तेल उनके विलाप के बदले उन्हें मिलेगा। garment of praise for the spirit of heaviness. यश का ओढ़ना उनके भारी हृदय, उनके उदासी मन के बदले मिलेगा। Always going into depression is heaviness, is not of God. हमेशा भारीपन में जाना, निराशा में जाना परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रियो। This is a spirit. ये एक किस्म की निराशा की आत्मा होती है। Spirit of heaviness. लिखा है उदासी की जो आत्मा है, For no reason you're bothered. और बिना कोई कारण के तू चिंतित रहता है। No reason you're afraid of things. और कोई कारण नहीं तू भयभीत होता है चीजों से। That's a spirit. ये एक आत्मा है। God is saying, परमेश्वर क्या कह रहा है? to counter that spirit, उस आत्मा का बदले में you begin to praise. तू स्तुति करने लग जा। Hallelujah. हालेलुया। The spirit will leave you. और वो आत्मा जो निराशा की छोड़ जाएगी। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Be free. आप आजाद हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The blanket of heaviness go. वो भारीपन का जो चादर है वो हट जाए तुझ पर से।
Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, you shall weep and lament, तुम रोगे, विलाप करोगे, but the world shall rejoice. परंतु दुनिया आनंदित होगी। And ye shall be sorrowful, और तुम दुखित होगे, but your sorrow परंतु तुम्हारा वो जो दुख है shall be turned into joy. वो आनंद में बदल जाएगा। He put my feet into dancing. वो तो मेरे पाँव में नृत्य डाल देता है। Hallelujah. 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 You will not be able to contain. आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। Leaping and jumping, praising God. उछलते और कूदते प्रभु की स्तुति करेंगे। That's what the Spirit of God does. परमेश्वर की आत्मा ऐसा बदलाव लाती है। You don't need to understand. तुझे समझने की जरूरत नहीं कि कैसे, Just need to hold His hand. केवल प्रभु के हाथ को थाम के रख। You don't need to ask the reason why. तुझे ये भी पूछने की आवश्यकता नहीं क्यों ये सब हुआ, For I know God will make a way. क्योंकि मुझको पता है परमेश्वर इन सब में से एक रास्ता निकालता है। Through the night, रात के अंदर से, through the day. दिन के समय के भीतर से। You don't need to understand. तुझे समझने की भी जरूरत नहीं, Just hold His hand. तुझे केवल उसके हाथ को थामना है। You don't need to understand. You just need to hold His hand. You don't ever need to ask the reason why. For I know He'll make a way through the night and through the day. You don't need to understand, just hold His hand. Sing it. I don't need to understand, I just need to hold His hand. I don't ever need to ask the reason why, for I know He'll make a way through the night and through the day. I don't need to understand, just hold His hand. Father, पिताजी, thank you for your promises तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ that you sign your promises with your own name. कि तूने अपने ही नाम की मुहर से उस प्रतिज्ञाओं पर मुहर लगा दी। And we know they will stand forever. और हमें बात जानते कि वो प्रतिज्ञाएं सदाकाल ठहरेगी। And you promised us, Lord, और तूने ये हमसे वायदा किया है, the Lord shall be unto thee an everlasting light. यहोवा स्वयं तेरी ज्योति ठहरेगा, And the days of your mourning shall be over. और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। I pray for your precious people प्रभु, मैं तेरे इन बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना who करूं, are going through circumstances, situations that defy solution. जो कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसे समय से गुजर रहा जिसका हल उन्हें नहीं दिखता, Let them look to their Maker. वे अपने बनाने वाले की ओर देखें। Let help come from heaven for them, I pray. प्रभु, उनके लिए मदद आने पाए स्वर्ग से, Let deliverance come from heaven. छुटकारा उनके लिए स्वर्ग से आ जाए। Be thou made whole in Jesus' name. और तुम जो बीमार हो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। Sickness, leave that body in Jesus' mighty name. बीमारी उस शरीर को यीशु के नाम में छोड़ दे। Take your hands off God's people and God's property. प्रभु के लोग और प्रभु की उस संपत्ति के ऊपर से अपने हाथ को हटा ले। The spirit of heaviness go. भारीपन, निराशा की आत्मा हट जा। Let praise come within their ओ hearts. हृदय के भीतर से स्तुति के गीत निकलने पाए। Bless them, O Lord. प्रभु, उन सब को आशीष दे।
Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. Thank the Lord for this day. प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। Don't give up. आप हार ना मानिए, God is on our side. परमेश्वर हमारे पक्ष में है Something good will happen. और इसीलिए कुछ बेहतरीन होने वाला है। Thank you for your prayers. आपकी जो प्रार्थनाएं हैं हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं Thank you for supporting the और ministry. सेवकाई में सहयोग देने के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। We take the offering now. इस समय अपने भेंटों को हम एकत्रित कर सकते हैं। Sing one chorus. एक कोरस को गा लेंगे। You don't need to understand. You just need to hold His hands. You don't ever need to ask the reason why. For I know He'll make a way through the night, through the day. You don't need to understand, just hold His hand. Father, I ask you पिता मैं तुझसे मांगता हूँ your blessing to rest on your people. तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर बनी रहे। Those who gave, bless them. जिन्होंने दिया है उनको आशीष देना, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उनको भी आशीष दे। We all together will love you and serve you all the days of our life. हम सारे मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा कर सकें प्रभु। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty and the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।